Hi everyone. I hope you are doing good. Everything is fine. And we are very close to the cat. Just one day to the cat. And this video is particularly for the slot one people. So in this video, we will discuss before going to the slot one, what mindset you should have and what are the things for which you need to worry and what are the things for which you don't need to worry, right? So start करते हैं. So the slot one people, I would first advise you to take any room near your test center or make sure that you are near your test center. The reason for this is that if you find that your test center is not at the right position on the morning of the Sunday, you may have very less options, right? You may have very less options to come back, right? To go to the other center. So this is for everyone, even for the slot 2, slot 3 guys. Just confirm your center one day before the cat, that is by tomorrow. Confirm your center that your center is at the exact place. Now coming on to the things that you need to be taken care of for the slot one. Slot one may, the first thing is that don't get any biasness, because the benefit of the slot one is that you people are completely unaware about the paper pattern, about the difficulty level, about the type of questions that the cat will throw. And believe me, the changes can happen. Since the cat authorities know that 3.3 lakh people are coming this year, they might change something a little bit. I don't have any info about that, but be ready or expect any surprises or the changes and don't get nervous. What happens with the slot one people that every year the slot one is not that hard as compared to the other slots. But when you take the reviews of the slot one people, as soon as they end up giving the exam, you will hear from that the exam is very difficult or they couldn't do their best. The reason is that they become very nervous even before going to the cat center. And as the cat center comes closer to them, they start getting more and more nervous. So the first thing, see, the knowledge which you have, the skills you have, the type of mocks, the amount of mocks, the familiarity with the questions that you have. बहुत लोगों के पास वो familiarity वो सब होगा, right? The only difference, the only thing that the CAT paper will actually test you to differentiate you from other people is that your calmness or how you handle the stress. They will try to make you or put you in a stressful situation where you might get a little nervous. See, देखो आपके 5-10 नंबर कम भी आ जाएंगे ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बट ऐसा मत कर देना आप बिल्कुल वहां पे होप छोड़ दो। बिकॉज वीआरसी फिर एलआरडीआई फिर क्वांट, तो जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाता है यार। मेरा तो वीआरसी खराब हो गया, मेरा तो एलआरडीआई खराब हो गया। देखो वीआरसी में तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, बिकॉज वीआरसी के मार्क्स यू गाइज नो कि कैसे आते हैं। वो आपके एक्सपेक्टेड से ज्यादा भी आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड से कम भी आ सकते हैं, तो डोंट जज योर वीआरसी अटेम्प्ट। एलआरडीए में एक हद तक अटेम्प्ट जज कर सकते हो, बट आई बिलीव कि अगर अटेम्प्ट आपने एलआरडीए में इतना किया है कि आपका मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड क्वांट में आप अपना बेस्ट दोगे जितना पॉसिबल है, और मेन थिंग ये कि आपको कहीं स्टक नहीं करना, ठीक है? आज आप आराम से अपना रिवाइज करो, कल पूरा दिन रिवाइज करना है, रिवाइज करो, आराम करना है, आराम करो। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक स्ट्रेस बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड अगर आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 या 7:30 है सुबह, तो मे बी आपको 5 बजे 4 बजे उठना पड़े, थोड़ा रिवाइज करने के लिए भी उठना पड़ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सो जाओ। एक दो फॉर्मूलेज कम भी याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वांट्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी सोल्ड जस्ट बाय यूजिंग द कॉमन सेंस और बाय यूजिंग सम इक्वेशंस। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज में फॉर्मूला याद है। एक दो क्वेश्चन आपकी छूट भी गए क्वांट्स में, तो इतना लोड नहीं है, ठीक है? द थिंग इज कि आप बहुत चीजें इंप्रूव कर सकते हो जस्ट बाय सेविंग द टाइम हेयर एंड देयर, तो वो चीज आपको करनी चाहिए। एंड आई वुड से कि वो ही आपको करना चाहिए, ठीक है? आप ये मत सोचना कि आप यहाँ पे पेपर दे रहे हो तो आपसे बेकार आदमी कोई नहीं है या आप सबसे वीक हो। बहुत लोग 3 लाख में से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मजे मजे के लिए पेपर दे रहे हैं, तो दिस कैन बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू ऑल्सो। तो जस्ट फोकस ऑन वट एवर यू नो to apply that and don't miss out on opportunities. Believe me, the paper will throw you tough situations and very easy situations also.
बट आपने टफ सिचुएशंस को ज्यादा वेटेज दे दी और इजी को कम दे दी तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। बट आपने दोनों को देखा कि यार ठीक है ये टफ क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूंगा, ये इजी क्वेश्चन है इसको मैं करूंगा, तो आपकी चीजें सॉर्ट रहेंगी। सेम फॉर द एलआरडीआई। आपको टारगेट आपका ये नहीं होना चाहिए आप 3 सेट करने हैं, नहीं, आपका ज्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए पहले मैं इजी सेट ढूंढूंगा, उसको करूंगा, जितना मेरा होता जाएगा टाइम टू टाइम मैं अपने सेट्स करता जाऊंगा, ठीक है। दिस इज वन थिंग। क्वांट में भी आपका सेम होना चाहिए। सिंस यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वांट्स विल कम, आई थिंक मॉडरेट ही आएगा। क्वांट कभी ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आया, एंड इवन वर्स टू वर्स केस में आपके 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कैट के। मॉक्स में चीजें डिफरेंट होती हैं। मॉक्स में दे ट्राई टू गिव यू अ डिफरेंट न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैट में थोड़ा सा पेपर पैटर्न सेम आता है। तो क्वांट्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत वीआरसी और एलआरडीआई में रहती है। वीआरसी में जो भी क्वेश्चन करो उसको ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आई वुड सजेस्ट कि उसको छोड़ देना रेदर देन उसको कोई गैस करना, तुक्का मारना। बिकॉज जनरली वीआरसी में ऐसे आंसर बनाते हैं जहां पे आपका तुक्का नहीं काम करेगा, ठीक है। एंड ओवर एंड अबव दैट आई वुड सजेस्ट कि आप चिल करो। चिल करो, ऐसा कोई लोड लेने की वो बात नहीं है कि बहुत बड़ा पेपर है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा पेपर है, बट ये पेपर ऐसा है कि इसको आप स्ट्रेटेजिकली क्रैक कर पाओगे। लोड लेके ये पेपर क्रैक नहीं होने वाला। लोड जितना लोगे आप अच्छा परसेंटाइल ले आओगे, बट आप अपने पोटेंशियल से कम परसेंटाइल लाओगे, ठीक है। तो ये मैं बार बार चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली इसको फील किया है, मैंने बहुत बच्चों के साथ डिस्कस किया है, उन्होंने फील किया है। तो दिस इज वन थिंग वेयर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स डोंट पे अटेंशन, या वो भूल जाते हैं। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल में भी बैठो तो आपको याद आए कि यार पल्लव कह रहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना। जब भी स्ट्रेस आए 2 मिनट बैठो, सोचो, उसके बाद सोच लो कि यार ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। जैसे एलआरडीए में क्या होता है, आप 5 मिनट लगा लिए, उसके बाद 2 मिनट का स्ट्रेस लो, 7 मिनट हो गए, उसके बाद सोचो यार ये छोड़ता हूँ मैं नया देखता हूँ, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। बिलीव मी, जब मैं क्वांट करता हूँ तो मैं इतना रिलैक्स रहता हूँ, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। अगर मैं हफ्ड़ा दफड़ी में क्वांट करूँ, नर्वस रह के क्वांट करूँ, तो मैं उतना स्कोर नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। इवन द टॉपर्स, है ना, जो भी टॉपर्स आएंगे आप में से, उनका आप जब आपका अगर पेपर बिल्कुल कामनेस के साथ गया तो आपका पेपर 100% अच्छा ही होगा, ठीक है। आप ये मत टेंशन लो कि मेरा 60 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे आज 50 मार्क्स आए थे, मेरे लास्ट मॉक में बहुत कम स्कोर आया था। लास्ट मॉक्स का स्कोर वेरी नहीं मतलब मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आपकी टफ सिचुएशन होती है, जब आपका रियल कैट होगा तो आपका एक तजुर्बा अलग होगा, राइट। आपका सोचने का प्रोसेस अलग होगा, आपका एक एफर्ट जो आप दोगे वो बहुत डिफरेंट होगा मॉक से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, स्लोट वन में एक बात और होती है, कुछ सेंटर्स में हो सकता है कि कुछ इश्यूज आ जाए सिस्टम में, स्क्रीन गायब हो जाए, माउस नहीं चले। तो ये सब चीजों के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो, इवन दो इट्स कंप्लीटली रॉन्ग फ्रॉम द सेंटर साइड। बट डोंट आर्ग्यू विद देम, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइमर नहीं रुकेगा, आपका सिस्टम भी रुक गया तो टाइमर नहीं रुकेगा। जस्ट रिक्वेस्ट देम कि सिस्टम को जल्दी से जल्दी सही कर दो। दिस इज 0.01% ऑफ द केसेस दैट हैपन एवरी ईयर, एंड नो बडी विल लिसन टू यू। जो मैंने कैट की चेकलिस्ट है वो मैंने बना दिया है, वो आप एक बार देख लेना जाने से पहले, ठीक है। बाकी मैं कहूंगा कि आई विल अगेन रिपीट कि आपकी तैयारी कम ज्यादा हो सकती है, बट वीआरसी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको भूल जाओ, जो आपको याद रखना पड़े। सेम गोज विद द डीएलआर, 100% नए सेट्स आएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको पहले से याद करना पड़ेगा। सेम गोज विद द क्वांट, क्वांट में बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, और अगर नया क्वेश्चन आएगा तो आपको नया सोचना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो इतना टेंस मत हो। जो आप अब हो रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार नए क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, वो मत करो। ग्रुप्स को एक बार क्लोज करो, अपना आराम करो, अपनी मूवी देखो, चिल करो। बिकॉज कैट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप अपने दिमाग में सारा कुछ भर के लेके जाओगे और वहां पे स्पिल आउट कर दोगे, राइट। वैसा एग्जाम ये नहीं है। आप ये सोच के जा रहे हो तो आप 100% गलत हो। आपको नई चीज मिलेगी, नया मॉक मिलेगा, एंड बिलीव मी, मॉक वाले जैसे आईएमएस बनाता है, सीएल बनाता है, ये पिछले पेपर्स को देख के बनाते हैं, बट जो कैट पेपर देगा वो नया पेपर देगा। इवन चीजें नए आ जाए, जैसे पैरा कंप्लीशन नया आ गया था पिछली बार, तो उसमें कुछ लोड नहीं लेना, कितना इजी था देखो। पिछली बार का स्लॉट वन का डीएलआर लोग बोल रहे थे बहुत हार्ड है, मुझे बहुत हार्ड वाली चीज तो नहीं लगी। अच्छा डीएलआर था, बट उसको बहुत हार्ड नहीं कह सकते ना। बच्चों के 6-6 मार्क्स आए थे, बहुत टॉपर्स थे जिनके 99% आते थे मॉक में, उनके 6 आए थे। जैसे मैं आराम से कॉफी पी रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ, आप भी सेम करो,
कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने अभी तक बहुत मेहनत की है। चाहे आपकी कमी रह गई हो चाहे नहीं रह गई हो, कंप्यूटर को नहीं पता आप कितना पढ़ के आए हो। जितना आप वहां पे एफर्ट डाल दोगे उतना ही आपका रिजल्ट में शो हो जाएगा। ठीक है, पेपर से पहले स्लॉट 1 वाले तो एकदम रिलैक्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एंजॉय करना है, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्लॉट 2, स्लॉट 2 वालों को क्या करना है? स्लॉट 1 का रिव्यू ले सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द स्लॉट 2। स्लॉट 1 का डीएलआर अगर एक्सट्रीम हार्ड भी आया, स्लॉट 2 का डीएलआर एक्सट्रीम इजी भी आ सकता है। एक साल ऐसा हुआ था कि स्लॉट 1 में डीएलआर में सेट थ्योरी का सेट था, स्लॉट 1 में। स्लॉट 2 वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेट थ्योरी का सेट आएगा, बट नहीं आया था। कोई भी सेट ऐसा आ सकता है जिसकी लैंग्वेज टफ हो, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बट एक्चुअल में इजी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर अरेंजमेंट का सेट आ जाए और वो बहुत डिफिकल्ट हो। तो स्लॉट 2 वालों को बायसनेस बिल्कुल कम रखनी है। इंग्लिश पहले स्लॉट की हार्ड आ गई, आपकी इजी आ सकती है, और पहले स्लॉट की इजी आ गई तो आपकी हार्ड आ सकती है। ठीक है, both slots are not related but the difficulty level across the slots will be maintained। आपको क्या लग रहा है वहां पे, वो आपकी गलती है, बट जो स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 में डिफिकल्टी लेवल होगा वो इतना नहीं होता। अब स्लॉट 2 वालों को क्या करना है क्या नहीं करना। आपका स्लॉट 12:30 स्टार्ट हो जाएगा, लेट्स एज्यूम आप 11:30 या 11:45 या 12 बजे एंट्री ले लेते हो, और स्लॉट 1 खत्म होगा 10:30 पे, राइट। यू एटलीस्ट हैव 1 आवर बिटवीन 10:30 to 11:30। उसके बीच में इट्स अप टू यू कि आपको कौन से मेंटर को सुनना है, क्या बात सुननी है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट व्हाट आई विल डू, आई विल कम लाइव और ट्राई टू कम लाइव एट 11:15 और 11:30, है ना। 10-15 मिनट का मैं कुछ बोलूंगा लाइव होके, आप एक बार वो सुन लेना। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा स्लॉट हार्ड आया, मैं लोगों से डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट 1 वाले लोगों से बात करके ये देखूंगा कि आप, क्योंकि देखो यार, एक मेंटर जब बोलता है उसकी बात अलग होती है, और एक स्टूडेंट जब बोलेगा उसकी बात अलग होती है। स्टूडेंट अपने परसेप्शन से बोलेगा, मैं ऐसे परसेप्शन से बोलूंगा कि वाज दैट पेपर डुएबल और नॉट, और ऑलमोस्ट पेपर डुएबल होगा ही होगा। ऐसा कैट की हिस्ट्री में कभी पेपर नहीं आया जो कि एक्सट्रीम हार्ड हो, जो कि बहुत लो कट ऑफ पे या कुछ ऐसा हो। ठीक है, एलआरडीआई आ सकता है जिसमें बच्चे फंसे, वो भी एलआरडीआई हार्ड नहीं होता, बट बच्चे अपना 100% वहां पे दे नहीं पाते। ठीक है, तो एलआरडीआई में क्या होता है कि बच्चे पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल डू 3 सेट्स एंड दे एंड अप डूइंग 0.5 सेट्स। तो आपको इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना, मैं रोज रोज कहता हूँ 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड देन 3 3.5 4, ये सब एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। पेपर पैटर्न विल बी कंप्लीटली सेम, दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग। तो स्लॉट 1 का पेपर पैटर्न आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना, अपने माइंड में अगेन कह रहा हूँ बायसनेस मत बनाना। अक्रॉस स्लॉट डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकती है, अक्रॉस सेक्शंस डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकती है, एंड दिस हैज हैपेंड इन पास्ट, दिस हैज हैपेंड इन प्रीवियस ईयर टू, तो वो सब हो जाएगा। जस्ट वन मोर थिंग, स्लॉट 1 वालों से कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, एटलीस्ट बच्चे क्वांट्स में पूछते हैं। द रीजन इज कि वो क्वेश्चन आपके कभी भी नहीं आएंगे स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में कभी भी नहीं आएंगे। तो स्लॉट 1 2 वाले अक्सर क्या करते हैं, बहुत टेंशन लेके वो बहुत स्लॉट 1 वालों को इंटेरोगेट करते हैं कि आपने क्या आया, आपने क्या किया, ये किया, फिर एक माइंडसेट बना के जाते हैं। वो आपको नहीं करना, आपको बस पेपर पैटर्न पूछना है। एक मेरी वीडियो आएगी वो देख लेनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। नाउ कमिंग टू स्लॉट 3, यू गाइज विल हैव मैक्सिमम टाइम। फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि सुबह ही उठ के मत बैठ जाओ, क्योंकि शाम तक आप इतने बोर हो जाओगे, इतने थके हुए हो जाओगे, आपका शायद पेपर देने का भी मन नहीं करेगा, इतनी नींद आने लग जाती है। तो आराम से आप 12 11 10 11 12 बजे उठो। ठीक है, उठ के जल्दी जल्दी स्लॉट 1 की वीडियो देखो। स्लॉट 2 के जब बाहर आएंगे लड़के, स्लॉट 2 की वीडियो देख लेना। उन वीडियो में बताऊंगा कि पेपर डुएबल है और आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, स्लॉट 3 वालों को सिर्फ एक आइडिया लेना है कि देखो स्लॉट 3 में ना, लोग सोचते हैं स्लॉट 3 हार्ड नहीं होता, बट स्लॉट 1 और स्लॉट 2 से वो एक ऐसी इमेज बना लेते हैं। मान लो स्लॉट 1 स्लॉट 2 में वीआरसी इजी आ गया, तो अब वो इजी ही एक्सपेक्ट करेंगे, उनको मीडियम लेवल वीआरसी भी दूंगा ना तो उसको वो टफ बोल देंगे, राइट।
और तुम्हें क्या पता है कितना इजी आया। मे बी एक बंदा वीआरसी में बहुत स्ट्रांग हो, मे बी आपने जिनसे बात करी है सब वीआरसी में अच्छा हो, उनको इजी लगाओ, और आप वीआरसी में बिलो एवरेज हो, है ना। तो वो सब आपको नहीं करना। आपके लिए अगेन सबसे मोस्ट ऑफ द थिंग इम्पोर्टेंट इज कि आपको रिलैक्स करना है, 4 बजे तक रिलैक्स करना है, बिल्कुल अनबायस होके। एक थिंग मैं श्योर कह सकता हूँ, आपको बच्चे कहेंगे कि डीएलआर हुआ ही नहीं, डीएलआर हार्ड था, ये था वो था, ये आपको पक्का कहेंगे। वो चीज सुन सुन के आप सोच लोगे कि डीएलआर हार्ड आएगा, और डीएलआर हार्ड आ भी सकता है, ठीक है। बट अगर आप पहले ही पेपर से सोच लोगे तो आपके 50% गेम ओवर है। अगर आपने सोच लिया कि डीएलआर हार्ड आएगा तो आधा गेम तो वहीं खत्म हो गया, और जो अगर एक्चुअल में हार्ड आ गया तो आधा गेम वहां खत्म हो जाएगा। तो ये अगेन माइंडसेट पे डिपेंड करता है। क्वांट के लिए भाई रेडी रहना, तीनों स्लॉट से मैं कह रहा हूँ, क्वांट स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, डिफिकल्ट, इजी, मीडियम, तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बहुत डिफिकल्ट भी आएंगे, बहुत इजी भी आएंगे, बहुत मीडियम भी आएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बहुत इजी होगा बट आपसे सोल्व नहीं होगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको बन रहा है क्वेश्चन तो बनाओ, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने ईगो पे ले लिया कि अच्छा ये सोल्व नहीं हो रहा है तो मैं करूंगा ही, और यहाँ पे मैं स्टक हो गया तो यहाँ पे मैं और टाइम इन्वेस्ट करूंगा। वो चीजें आपको नहीं करनी, वो चीजें, वो गलतियां आपको दूसरों को करने देनी है। आप वो सब चीजें, आपको वो सब चीजें दूसरों को करने देनी है, ताकि वो मिस्टेक्स करें और आप उनसे ज्यादा परसेंटेज लाओ। बिकॉज हर बच्चा ये वीडियो नहीं देख रहा, हर बच्चे को नहीं पता कि नर्वस होना है या नहीं होना। कई बच्चे वीडियोज ही नहीं देखते, कई बच्चे बस सोच रहे हैं कि उनका एक अपना माइंडसेट बना हुआ है, वो सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो मुझे सब पता है, मैं मेरी प्रिपरेशन फुल है। बट ये प्रिपरेशन की गेम है, but to an extent only. After that, the game is more about how you apply those knowledge, how you tackle the paper, how you handle the paper in 120 minutes. And believe me, 120 minutes is too way shorter. 40 मिनट ऐसे भागेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा इफ यू आर स्टक समवेयर। और बिलीव मी, आप मॉक्स में शायद नहीं नर्वस हो गए, वहां पे नर्वस हो जाता है, बड़े बड़े नर्वस हो जाते हैं जब एग्जाम सेंटर में आपकी रेस लग रही हो, राइट। तो आपको बहुत सोच समझ के पेपर करना है। स्टिल अगर आपको कोई चीज का आंसर नहीं मिला तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी ड्रॉप कर दो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप आराम से चिल करो, अभी आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।